मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, नबी की सुन्नतों का आम करता हूँ। मैं अदब से भैरव कोठी वाले को सलाम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोग अगर सलाम समझ में आता है तो थोड़ा ज़ोर से आवाज़ में जवाब दीजिए कि लहजा भी कबूल हो, तरन्नुम कबूल हो, तरन्नुम के साथ साथ तकल्लुम कबूल हो। लहजा भी कबूल हो, तरन्नुम कबूल हो, तरन्नुम के साथ साथ तकल्लुम कबूल हो। और मैं भी रसूल पाक की उम्मत का फर्द हूँ, मेरा भी अस्सलामु अलैकुम कबूल हो। तो आइए मैं फिर से सलाम करता हूँ और पूरे मजमे से आवाज़ आनी चाहिए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, अब लग रहा है कि जिंदा लोग बैठे हैं यहाँ और भैरव कोठी के लोग हैं। आइए इस प्रोग्राम का आगाज तिलावत कलामुल्लाह से होगा। ये प्रोग्राम 26 जनवरी का है। हमारे उलमा और अकाबीर का इत्तज़ाम रहा है कि किसी भी दीनी महफिल, दीनी प्रोग्राम का आगाज तिलावत कलामुल्लाह से होता है। वो कलाम जिनका सुनना भी सवाब, जिनका पढ़ना भी सवाब, जिनका खोलना भी सवाब, जिनका देखना भी सवाब, वो कलाम जिसे मिटाने के लिए दुनिया ने बड़ी कोशिश की, लेकिन कुरान वही का वही है, क्योंकि इनकी हिफाजत अल्लाह फरमाता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, के नाजिल भी हमने की और इसकी हिफाजत भी हम ही करेंगे। तो आइए तिलावत कलामुल्लाह के लिए मदरसा जामिया हुसैनिया के एक तालिब इल्म को दावत दे रहा हूँ इस शेर के साथ कि सदा ईमान की लौ की हिफाजत करते रहते हैं, सदा ईमान की लौ की हिफाजत करते रहते हैं, सिपाही जंगों में भी इबादत करते रहते हैं और हवा भी उसके कच्चे घर को छू नहीं सकती जो दिए के रोशनी में तिलावत करते रहते हैं। तिलावत कलामुल्लाह के लिए मुजीबुर रहमान को दावत देता हूं कि वो आए उस प्रोग्राम का आगाज करे तिलावत कलामुल्लाह से। कि जहां तक जगह पाइए खसकते खिसकते चले आइए। जितने भी हजरात बाहर खड़े उन सबसे मेरी गुजारिश है कि अंदर आगे बैठ जाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लौ मिन खश्यतिल्लाह व तिल्कल अम्सालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफक्करून। हुवल्लाहुल शहादा हुवर रहमानुर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लौ
آية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, may praise be to Allah, the creator of the world, and peace and blessings be upon his prophet, the head of all messengers, upon his family and all his companions. Dear audience, I have been given the honor to speak some words about introduction to Islam before you. May Allah give us tawfiq to follow the teaching of Islam in all spheres of life. Allah says in the Holy Quran, Inna ad-deena 'inda Allah al-Islam. Verily the religion before Allah is Islam. At another place Allah says, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. If anyone desires a religion other than Islam, never will it be accepted of him, and in the hereafter he will be in the ranks of those who have lost. Islam is an Arabic word that means submission and surrender to the will of Allah. Islam is a perfect form of the true religion. The basicness of Islam includes oneness of Allah, belief in prophets and messengers, belief in angels, belief in heavenly books, belief in destiny, belief in resurrection, and belief in the day of judgment, paradise and hell.
Islam is a heavenly religion. The Prophet of Islam is Sayyidina Muhammad. Allah bless him and give him peace. Those who follow Islam are all Muslims. Muslims believe in all messengers and prophets from Sayyidina Adam, peace be upon him, to Sayyidina Isa, peace be upon him. According to some tradition, there were more than 100,000 prophets. There were 100,000 prophets, messengers. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ. अब आइए, ये नज़्म है क्या? माशाअल्लाह, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में खूबसूरत नज़्म समाअत फरमा रहे थे, लेकिन आप हज़रात एकदम खामोशी के साथ सुन रहे थे। मैं एक शेर पढ़ रहा हूँ, यहाँ से कोई खामोश नहीं रहेगा कि ये कौन कह रहा है कि तलवार लेके चल। ये कौन कह रहा है कि तलवार लेके चल, दुनिया सलाम ठोकेगी, किरदार लेके चल। ये कौन कह रहा है कि तलवार लेके चल, दुनिया सलाम ठोकेगी, किरदार लेके चल। और क्यों फिर रहा है किसी सरकार के पीछे? क्यों फिर रहा है तू किसी सरकार के पीछे? अरे ऐसा बन के साथ में सरकार लेके चल। क्यों फिर रहा है किसी सरकार के पीछे? ऐसा बन के साथ में सरकार लेके चल। कि आज के दौर में दलाल लोग अनारी को बेच देते हैं। आज के दौर में दलाल लोग अनारी को बेच देते हैं। तुम्हारे जैसी हुकूमत, खुदा की कसम, हमारे बच्चे कबाड़ी में बेच देते हैं। तुम्हारे जैसी हुकूमत, खुदा की कसम, हमारे बच्चे कबाड़ी में बेच देते हैं। कि प्यार मोहब्बत बांटोगे, अच्छे बंदे हो जाओगे। प्यार मोहब्बत बांटोगे, अच्छे बंदे हो जाओगे। कीचड़ दूसरों पे उछालोगे, खुद गंदे हो जाओगे। और हमें मिटाने की कोशिश में नस्ल फना हो जाएगी। हम सूरज है, आंख मिलाओगे तो अंधे हो जाओगे। हमें मिटाने की कोशिश में नस्ल फना हो जाएगी। हम सूरज है, आंख मिलाओगे तो अंधे हो जाओगे। अब तकरीर पेश करने के लिए फैज अली बख्शी को दावत देता हूं कि वो आए और तकरीर पेश करे। आप लोग इसी तरह से दिलजमी के साथ बैठे रहे। अभी आपके दरमियान मुकालमा भी पेश किया जाएगा, इसलिए आप तमामी हजरात से गुजारिश है कि अभी जो है अफरा तफरी का माहौल ना बनाएंगे, इसलिए कि आप लोग इसी तरह से फिट रहें ताकि मैं भी फिट रहूं। उसके बाद आज ऐसा गिफ्ट दूंगा जो आपके दिलो दिमाग में जाके शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद ये भैरव कोठी का प्रोग्राम हिट हो जाएगा, है कि नहीं? तो मुकालमा भी सुनकर इंशाल्लाह आप लोग जाएंगे यहाँ से। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। जनाब सदर जलसा और स्टेज पर जलवा अफरोज मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम, मैं चाहता हूँ कि इस मुख्तसर से वक्त में जंग आज़ादी हिंद में उलमाए देवान के किरदार पर कुछ रोशनी डालूं। दुआ फरमाए कि अल्लाह ताला मुझे माफिज ज़मीर को सही सही अदा करने की तौफीक नसीब फरमाए। मेरे दोस्तों, इस्लामी तारीख का जब हम मुताला करते हैं मेरे दोस्तों, इस्लामी तारीख का जब हम मुताला करते हैं, इस्लामी किताबों को जब हम खंगाल कर देखते हैं, तो हमें साफ और वाज़ेह तौर पर नजर आता है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक जितने भी दौर आए, हर दौर में हक और बातिल की आवेजिश और टक्कर रही है। यह एक निजाम और कुदरत की करिश्मा साजी है
कि हर दौर में हक बेसरो सामानी के आलम में आया और बातिल सरकशी, तकब्बुर, अनानियत, गुरूर, शौकत और हशमत और ताकत लेकर नमूदार हुआ। लेकिन तारीख की वर्क गर्दानी से पता चलता है कि हक को हमेशा अल्लाह तबारक व तआला ने गलबा अता फरमाया है। मेरे दोस्तों, हमें रोजे रोशन की तरफ यकीन है कि सही माना में हक पर कायम आज जो दुनिया में जमात है वो उलमाए देवबंद की जमात है। हमें यकीन है कि उलमाए देवबंद की जमात इस दौर में अंबिया की वारिस जमात है कि जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के ऐन मुताबिक हर बातिल का हर तरीका से मुकाबला किया। अंग्रेज आया उसका मुकाबला किया, उसकी जरूरत में से कादियानी आए उसका मुकाबला किया, परवेजी आए उसका मुकाबला किया, दुश्मनाने सहाबा आए उनका मुकाबला किया। गर्जे के बातिल जिस लिबास में आया देवबंद का परचम उसके बिल्कुल मुकाबिल में आया। उसी को सूरज काश्मीरी ने कहा है, उसमें नहीं कलाम के देवबंद का वजूद, उसमें नहीं कलाम के देवबंद का वजूद, हिंदुस्तान पर है एहसान मुस्तफा। गूंजेगा चार कोट उस नानौतवी का नाम, बांटा है जिसने बाद इरफान मुस्तफा। मोहतरम हजरात, मैं वक्त का ख्याल करते हुए और तफसील में न जाते हुए यह बतलाना चाहता हूँ कि सन 1857 के इनकलाब के बाद बिला आखिर अंग्रेजों की धोखाधड़ी काम आई गई और मुगल सल्तनत का टिमटिमाता हो चारा गुल हो गया और बहुत से लोग खाको खून में तड़पने लगे। उलमाए इकराम की एक बहुत बड़ी जमात जिसने अंग्रेजी इख्तियार की मुखालिफत की थी तह तैक कर दी गई और बहुत सारे जजीरा इंडोमान भेज दिए गए और आम मुसलमानों का इस मुल्क में इज्जत आबरू के साथ रहना मुश्किल हो गया। इस दौरे इन्हतात में जिन उलमा ने अंग्रेजी इख्तियार के खिलाफ जिहाद का ऐलान किया था और मैदान कारज़र गन में किया था, उनमें हुज्जतुल इस्लाम मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नानौतवी रहमतुल्लाह अलैह, आलिम रब्बानी मौलाना रशीद अहमद साहब गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, हाफिज आमिर शहीद थानवी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना मुनीर साहब नानौतवी रहमतुल्लाह अलैह और उन बुजुर्गों के दूसरे अहबाब व अंसार भी थे। उन सब हजरात के सरबराही का फरीजा आरिफ बिल्ला हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह अंजाम दे रहे थे। शामली के मैदान में उन सब हजरात ने ताजे शुजाअत दी और अंग्रेजी फौज का मुकाबला खुलकर किया। लेकिन जब मुल्क पर अंग्रेजी इक़्तिदार कायम हो गया तो उन सब हजरात पर बगावत के नाम पर मुकदमे चलाए गए और तरह तरह से उन्हें परेशान किया गया। इस अफरा तफरी के आलम में अंग्रेजों ने मौका देकर पादरी का एक जम्मे गफीर हिंदुस्तान की सरजमीन पर उतार दिया और फौजी दस्ता की हिफाजत के साए में जब पादरी अलल ऐलान तमाम शहरों और आबादियों में अलल ऐलान ईसाईयत की तबलीग करने लगे और इसी के साथ उन्होंने इस्लाम पर हमला शुरू कर दिया। अंग्रेजों की पॉलिसी यह थी कि किसी तरह मुल्क के बड़े बड़े हिस्सों में ईसाईयत के कदम जम जाए। यह वक्त उलमाए इकराम के लिए बड़ा नाजुक और संगीन था। लेकिन इस फितना के आगे हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नानौतवी रहमतुल्लाह अलैह दीवार आहिनी बनकर आड़े आ गए और पादरी के हर मैदान में छक्के छुड़ाए। दाखिली फितनों के सामने हजरत मौलाना रशीद अहमद साहब गंगोही रहमतुल्लाह अलैह आए और अंग्रेजों को आए और फितनों को काफिर किरदार तक पहुंचा कर दम लिया। मेरे दोस्तों, उन हजरात के बाद उनके जानशीन शेखुल हिंद मैदान अमल में आए और तहरीके रश्मी रुमाल चलाकर अंग्रेजी इख्तियार की जड़ों को मुज़म्मिल कर गए और उनके बाद उनके जानशीन मर्द मुजाहिद हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह आए और अंग्रेजों को हिंदुस्तान से भगा कर दम लिया। हजरात यह वो करना में है कि जिन्हें तारीख कभी फरामोश नहीं कर सकते। अगर यकीन नहीं आता तो जाओ माल्टा की दरो दीवारों से पूछो शेखुल हिंद महमूद हसन रहमतुल्लाह अलैह कौन थे।
कराची और इंडिया के जेलों से पूछो सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह कौन थे। जजीरा इंडोमान और काले पानी से पूछो जाबर तानसेरी रहमतुल्लाह अलैह कौन थे। मयान वाली और सैकोर के जेलों से पूछो सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह कौन थे। पंजाब और बालाकोट की संगलाख जमीनों से पूछो सैयद अहमद बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह और शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह कौन थे। हाँ, उन दरख्तों और जिंदा खानों से पूछो जहाँ पर हक बोलने वाले पाकिस्तान इंसानों की लाशें लटके रही, जिन्होंने दीन वतन के खातिर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, जिन्होंने बातिल के हर चैलेंज को कबूल किया और बेखौफी से उनका मुकाबला किया। उन्होंने जाने तो दी मगर बातिल को कभी पीठ न दिखाई। उन्होंने सर तो कटाया मगर आजादी के परचम को सरनिगो न होने दिया और पूरे आलम में अपनी शराफत और शुजाअत का परचम नस्ब कर दिया और बरसरे आम ऐलान कर दिया। बातिल से दबने वाले आए आसमान नहीं हम, बातिल से दबने वाले आए आसमान नहीं हम। 100 बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा, तौहीद के अमानत सीनों में है हमारे। आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। मुहतरम हज़रात, यह अमर वाक़या है कि उलमाए देवबंद की ज़ल्म बेपनाह से अंग्रेजी इक़्तिदार महफूज न रह सका। उन्होंने उस शैतानी शिद्दत पर, उस शैतानी दस्ता पर पूरी शिद्दत से वार किया। जरूरत पड़ी तो गोली चलाई, जरूरत पड़ी तो तलवार चलाई, तलवार फेंकी तो कलम उठाया और जब जरूरत पड़ी तो कौम के नौनिहालों की तरबियत इस्लाम फरमाकर मुल्क की आज़ादी का सामान तैयार कर दिया। बिला आखिर 1947 में हिंदुस्तान आजाद हुआ और दुश्मन अपने अंजाम को पहुंचा। अल्लाह ताला हमें उन उलमाए किराम की कदर की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। हम बैठे हुए हैं जामिया हुसैनिया भैरव कोठी के बरामदे में, आंगन में। आप लोगों को एहसास हो रहा होगा अल्लाह तबारक व तआला का कितना बड़ा करम है, कितना बड़ा करम है। आपने शायद आपके बच्चे जो स्टेज पर आए, गालबन आप लोगों ने उस बच्चों को ध्यान से नहीं देखा होगा। इसमें ऐसे बच्चे भी आपके सामने बहुत अच्छी तकरीर पेश की। एक जमाना ऐसा था कि बगल में इस्राइल साहब बैठे हुए हैं, इनका रहना सहना कांटा चौक पे हुआ करता था। 2092 के दंगा में वो वहां से भाग आए। जानकारी नहीं थी इनको कि मुसलमान का रहना सहना कैसा होता है, मुसलमान किसको कहते हैं, कलमा क्या चीज है। न इनको, न इनके बाप को, न इनके खानदान वालों को, बस भैंसा रखना और उससे जो है अपना बिजनेस चलाना, इतना ही जानते थे। 92 के दंगे में जब यहाँ आते हैं, घर बनाते हैं जमीन खरीद करके, तो उस वक्त हम लोग गश्त में निकला करते थे। इनकी मुलाकात हमसे होती है और कहते हैं कि चलिए साहब अल्लाह और उसके घर से जुड़ जाएं। बेचारा लब्बैक कहा और मस्जिद में गए, बात गौर से सुना। उसी दिन से ये 5 वक्त पाबंदी के साथ नमाज अदा आज तक कर रहे हैं। मेरी नमाज कबूल हो या ना हो, मेरी नेकी कबूल हो या ना हो, मेरा अच्छा काम कबूल हो या ना हो, लेकिन मेरी आवाज पे अल्लाह ताला ने जिसको भी तौफीक अता फरमाई, माशाअल्लाह आज कम से कम कुछ आदमी तो चले गए, कम से कम 10 आदमी ऐसे हैं जो 5 वक्ता नमाज अदा करते हैं। मुझको यकीन है यहाँ फारिग देवबंद है, आपके मदरसे में आए फारिग देवबंद, उनसे पूछ लीजिए मुझको मिले या ना मिले, लेकिन ये लोग जो कर रहे हैं
क़यामत तक जब तक ये जिंदा रहेंगे हमको भी मिलता रहेगा। आज इनका एक पोता यहाँ पे बहुत अच्छी तकरीर की है। क्या आपने गौर किया कि यह किसका लड़का है, कौन बिरादरी से ताल्लुक रखता है? ये जामिया हुसैनिया भैरव कोठी का दैन है कि सुबह से लेकर आपको 12 बज रहे हैं, 12 बजे तक प्रोग्राम हुआ, बच्चों का प्रोग्राम था। माशाअल्लाह बहुत अच्छे अंदाज में बच्चों ने तैयारी की थी, तकरीरें भी अच्छी जबान में की और आपके सामने वो कुरान मजीद का मानी अंग्रेजी में बताया। कुरान मजीद का माने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का माने कुल हु अल्लाह का माने अंग्रेजी में बताया। ये कम नहीं है, ये आप बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो कहते हैं, जो मदरसा में बात सही ने कहा कि मदरसा में पढ़ने वालों के बच्चों की कोई अहमियत नहीं। नाक में नेटा लगा हुआ है, आंख में कीची लगी हुई है, हाथ नहीं धोया हुआ है, जो बेटा पढ़ो जो पढ़ो जो पढ़ो जो। फिर आप दूसरे बच्चा को स्कूल भेजते हैं, अपने हाथ से नहलाते हैं, मुंह साफ करते हैं, अच्छा कपड़ा साफ कपड़ा उसको पहनाते हैं और फिर स्कूल वाला रास्ता आप बता देते हैं। बहुत सारे तो स्कूल तक, स्कूल के अंदर तक पहुंचा देता है। आप जो इल्म इस दुनिया में काम दे या नहीं दे, समझे ना, कोई ठिकाना नहीं है, मरने के बाद तो बेकार है। और जो इल्म यहाँ भी काम दे, मरने के बाद भी काम दे, उस पे हम मुसलमानों का कोई ध्यान नहीं है। इसलिए मैं खास करके कुछ हमारी औरतें खड़ी हैं, उन लोगों से मेरी गुजारिश है कि अपने बच्चे बच्चियों को जरूर मदरसा भेजें और तालीम दिलवाएं। उर्दू तालीम महंगी जरूर होती है, महंगी का मतलब यह है कि रुपया पैसा में नहीं, उसमें मेहनत ज्यादा करना पड़ता है, हिंदी में मेहनत कम करनी पड़ती है, इसलिए इससे बच्चे भागते हैं। लेकिन आप उसको बार बार मदरसा में भेजने की तलकीन कीजिए। यहाँ के असातिज़ा कराम को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह तबारक तआला उन्होंने की सेहत याबी अता फरमाए कि बच्चों को अच्छी तरबियत दे और जैसे जैसे प्रोग्राम हुआ कहीं भी कोई बच्चे के अंदर झझक नहीं था, समझा ना। ऐसा ना भाई कि खड़े हुए दो चार बात कहा और चुप हो गए, ऐसा बच्चों के अंदर नहीं पाया गया। इसलिए उस्तादों ने उन बच्चों के ऊपर मेहनत की है। आप लोग भी उन उस्ताद का ख्याल रखिए और अपने बच्चों को, जैसा कि आपने वादा किया, हाथ उठाया कि मदरसे में बच्चों को भेजेंगे, सिर्फ भेजना ही नहीं है, पूछिए कि क्या पढ़ा, किसने पढ़ाया, कौन मौलाना से पढ़ाया, हाफिज जी से पढ़ा या फिर किसी मौलाना से पढ़ा, ये पूछिए, तब आपको पता चलेगा कि हमारा बच्चा मदरसा में जाकर के पढ़ा है, गया है या नहीं गया है। जब मौलवी साहब का नाम पूछेंगे कि कौन सा मौलवी साहब से पढ़े हो, हाफिज जी से पढ़े हो कि मौलवी साहब से पढ़े हो, मौलवी साहब से पढ़े हो, कौन से मौलवी साहब से, उनका क्या नाम है, बच्चे को डर होगा। अगर वो इस मदरसा में आया होगा तो बता देगा कि जलाल हाफिज जी यहाँ पर हैं या फिर नजीर हाफिज जी यहाँ पर हैं या शमीम हाफिज जी यहाँ पर हैं या मौलाना शादाब यहाँ पर हैं। जो बच्चा मदरसा में नहीं आया होगा, रास्ता पर खेल कूद करके वापस चला गया होगा, वो कुछ नहीं बताएगा। आप समझ जाइए मेरा बेटा या मेरी बेटी ये इस मदरसा में नहीं गए, इसलिए उसे ताकीद कीजिए, तंबीह कीजिए और उनको तालीम की तरफ रग़बत दिला करके अपने दिल में पहले अपने आप को भी, तो जो है हमारी बहुत सारी माएँ हैं जिसकी बच्ची आती है पढ़ने के लिए, उन लोगों से गुजारिश है कि आप कलमा पढ़ना नहीं जानते हैं, अपने बच्चियों से कलमा सीख लें।
माशाअल्लाह अगर आपके बच्चे या आपके बच्चे रोजाना मदरसा आते होंगे तो जरूर कलमा याद होगा और तहियात याद होगा, दरूद शरीफ याद होगा और आप उसे सीखिए। अगर आपका बच्चा कलमा नहीं जानता है, दरूद शरीफ नहीं जानता है, इसका मतलब ये है कि रोजाना आपका बच्चा मदरसा में नहीं आता है। और आता है तो आप उस बच्चे को पूछिए और फिर सीखिए कि बेटा मुझको तहियात याद करा दो, मुझको कलमा याद करा दो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हमको सिखा दो, इसका मानी बता दो। वक्त ज़्यादा हो चुका है और मैं ज़्यादा और बात करने की जरूरत नहीं। जितने बच्चे इसमें शिरकत किए हैं, हिस्सा लिया है, मैं एक दफ़ा और शामिल हुआ था तो सारे बच्चों को जो बच्चे शामिल हुए थे प्रोग्राम में, उनको एक कलम और एक कॉपी दिया था इनाम में। तो आज मैं फिर आप लोगों से या उन बच्चियों से कह रहा हूँ कि जितनी बच्चियाँ इसमें हिस्सा लिया है, बच्चे या बच्चियाँ, उन सबको एक एक कॉपी और एक एक कलम दिया जाएगा। इसी के साथ दुआ कीजिए। आइए हम लोग दुआ मांगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।